Hello students, I am Dharmesh from SGDS. Welcome to our online learning. Standard 5, Lesson 6, Algorithm and Flowchart, जिसमें हमें जानना है एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट के बारे में। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 45 पर बताया गया है 2 क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। सेकंड है, डज ए कंप्यूटर फॉलो एनी सीक्वेंस व्हाइल सॉल्विंग ए प्रोग्राम? नो। ओके, इंग्लिश में रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बाद में इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि क्या है। ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। द लैंग्वेजेस वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, COBOL, C++, Java and HTML are some popular programming languages. A program is a set of instructions written in a language understood by the computer. A programming task can be divided into 2 steps. The first step involves creating a sequence of steps to understand a problem, and the second step involves implementing the program thus created. Okay? अब इसे ध्यान से समझ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम निर्देशों का एक सेट है जो किसी समस्या को हल करने की पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसका प्रमुख लक्ष्य अपेक्षित परिणाम यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट प्राप्त करना है। इसमें कई निरंतर स्टेप्स होते हैं जिनके समाप्त होने के बाद ही आउटपुट आता है। हम एक चाय बनाने का एल्गोरिथम का उदाहरण समझ लेते हैं। स्टेप 1, केतली में पानी भरे, पानी को उबाल ले, केतली में चाय पत्ती डाले, कूट कर अदरक डाले, 1.5 चम्मच चीनी डाले, चाय को पकने दे और चाय को छाने और कप में डाले। ये सिंपल चाय बनाने का एल्गोरिथम है। जिस प्रकार एक चाय बनाने के लिए हम ऊपर गए स्टेप्स को बारी बारी से निष्पादित करना होता है, ठीक उसी प्रकार प्रोग्रामिंग में किसी प्रक्रिया या कार्य को करने के लिए एल्गोरिथम लिखी जाती है ताकि मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सके। ओके, जिसे कहते हैं हम एल्गोरिथम। अब जानते हैं पेज नंबर 46। An algorithm is a sequence of steps carried out to solve a given problem. Algorithms are written using simple English language. Algorithm must be efficient and written with clear and limited number of steps. We follow algorithm every day for our day-to-day task, from waking up to preparing breakfast. Everything involves an algorithm. For example, an algorithm to make up a cup of tea is as follow. जैसे हमने अभी जाना कि कप ऑफ टी कैसे बनाते हैं, उसे हम इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। 1, start. 2, take a pan, light the burner and put the pan on the burner. Add half cup of water. Let it boil for some time. Step 5. Add 1 teaspoon of sugar and of a tea. Add half cup of milk. 7. Wait until it boils. 8. Turn off the burner. 9. Pour the tea in the cup. 10. Stop. Let us now see some more example to write algorithms. Example 1. Write an algorithm in to add 2 numbers.
Start, take 2 numbers, 3, add 2 numbers, stop. Example 2, write an algorithm to input 4 numbers and find the average. पहले हमने एग्जाम्पल 1 देखा जो किसी भी 2 नंबर का सम था। एग्जाम्पल दूसरा है वो किसी भी 4 नंबर का एवरेज निकालना है। स्टार्ट, नंबर 2 टेक 4 numbers, नंबर 3 फाइंड द सम, नंबर 4 फाइंड द एवरेज एंड 5 स्टॉप। ओके, flowchart. Flowchart is a graphical depiction of an algorithm. Flowchart shows the sequence of information in a program. They are helpful for writing a program. Various symbols are used to create a flowchart. These symbols with their names and meanings are given below in a table. Number 1. Start and end box. It is used to denote the start or end of a flowchart. Second है processing box. It is used to carry out a process. For example, processes like addition and multiplication are denoted in this box. Addition और multiplication कहाँ होगा? तो ये processing box में. Number 3, connected. This is used to connect one part of a flowchart to another. उसके बाद है input output box. This is used to show an input or output instruction. Next, decision box. It is used to display decision or comparison in a program. And last, flow lines. The arrow denotes the flow of information. उसके बाद एल्गोरिथम क्रिएट करने के लिए हमें फ्लोचार्ट करना है। फ्लोचार्ट भी होना जरूरी है जिसके कुछ रूल्स हैं जो बताए गए हैं। There can be only one start and stop object in a flowchart. यानी एक स्टार्ट पॉइंट और एक ही स्टॉप पॉइंट होना चाहिए। The direction of flow lines must be from top to bottom or left to right. Flowchart की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट ही होनी चाहिए। The arrow must always be marked with arrowheads. Arrow जिसे फ्लो लाइन कहते हैं वो कहाँ जा रही है वो प्रॉपर बताना होगा। Use proper symbol at each step like input, output, decision और processing. हर सिंबल सही ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप कनेक्टर का यूज़ कर रहे हो तो उसमें इनपुट आउटपुट का सिंबल नहीं चलेगा। अब इसे जान लेते हैं फ्लोचार्ट क्या है। फ्लोचार्ट बिल्कुल किसी मकान के फ्लोर प्लान की तरह है। एल्गोरिथम का चित्रात्मक रूप होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिंबल्स बताते हैं कि एल्गोरिथम किस डायरेक्शन में जा रहा है। फ्लोचार्ट से प्रोग्राम को समझना, एल्गोरिथम को समझना बहुत आसान हो जाता है और साथ ही इससे प्रोग्राम लिखना आसान होता है तथा गलतियाँ सुधारना भी सरल होता है। फ्लोचार्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बारीकियाँ शामिल नहीं होती है, अतः प्रोग्रामर का पूरा ध्यान समस्या के समाधान के लॉजिक पर होता है। यहाँ फ्लोचार्ट के जितने भी सिंबल हैं दिखाए गए हैं, टर्मिनल, प्रोसेस, फ्लो लाइन, इनपुट आउटपुट, डिसीजन जिसे टेस्ट भी कहा जाता है और कनेक्टर। टर्मिनल फ्लोचार्ट शुरू और बंद करने के लिए। इनपुट आउटपुट फ्लोचार्ट में इनपुट आउटपुट या रिजल्ट शो करने के लिए। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेसिंग किसी प्रकार की कैलकुलेशन को दिखाने के लिए। निर्णय यानी कि डिसीजन फ्लोचार्ट में कंडीशन
इक्वेशन या डिसीजन दिखाने के लिए, फ्लो लाइन फ्लो चार्ट की दिशा बताने के लिए, और कनेक्टर दो फ्लो चार्ट को जोड़ने के लिए। ओके, एनी कंफ्यूजन? सी दिस वीडियो अगेन। अब टाइम टू आंसर पेज नंबर 48 पर है, वो हम फिनिश कर देते हैं। राइट द नेम ऑफ द फ्लो चार्ट सिंबल विद द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने अभी अभी बता, इसलिए हम नेम ही लिखेंगे। आप वैसे ही लिखिए कि मैंने लिखा है। पहला डिसीजन बॉक्स, सेकंड कनेक्टर, थर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ इनपुट आउटपुट बॉक्स, एंड लास्ट स्टार्ट एंड बॉक्स। कुछ फ्लो चार्ट्स आपको पेज नंबर 48, 49 और पीछे 50 पर नाउ बाय नाउ दिया गया है, और कुछ फ्लो चार्ट आप खुद भी सोच सकते हो। पहला फ्लो चार्ट है एग्जाम्पल 1 बताया गया है, जिसमें आपको 2 नंबर को ऐड करना है। स्टेप 1 है स्टार्ट, स्टेप 2 है टिक 2 नंबर्स, स्टेप 3 ऐड 2 नंबर्स, एंड 4 लास्ट है। ओके, उसके बाद पेज नंबर 49 पर फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। 49 पर जाने से पहले फ्लो चार्ट कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। स्टार्ट जैसे होता है वैसे के टाइप वैसे। इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी। प्रोसेसिंग बॉक्स में सम हो रहा है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। लाइक हम ए और बी की वैल्यू 2 प्लस 2 लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4। जो आंसर हमें आ गया तो फिर हम इस फ्लो चार्ट को बंद करेंगे, यानी कि स्टॉप। उसी तरह से एग्जांपल 2, draw a flow chart to input 4 numbers and find the average. Find their average. Step 1 start. Step 2 take 4 numbers. Step 3 find the sum. Step 4 find the average. And step 5 stop. पहले स्टार्ट किया, 4 डिजिट्स डाले, इनपुट ए बी सी डी। हम ए बी सी डी में ले लेते हैं 5 5 5 5 20 होते हैं। आपको बताइए सम इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने होते हैं 20। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 4। 20 डिवाइडेड बाय 4, जिसका आंसर क्या आएगा वो आपको पता है। ओके, अब आंसर आपको मिल गया तो फिर स्टॉप। एग्जाम्पल 3, ड्रॉ a flow chart to find smaller end of the 2 given numbers. Start. Input 2 numbers A and B. ये फ्लो चार्ट डिसीजन वाला है। ओके, A एंड B यानी कि एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। A की वैल्यू लेते हैं हम 5, B की वैल्यू लेते हैं 6। ओके, A लेस देन B। अगर यस तो आंसर क्या आएगा प्रिंट B इज स्मॉलर। अगर B A से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा प्रिंट B इज स्मॉलर। अगर A से बड़ा है तो प्रिंट A इज स्मॉलर। जो भी बड़ा होगा वो आंसर आएगा। जिस तरह से हमें आंसर मिल गया उसी तरह से हमारा काम फिनिश हो गया, इसलिए हम बाहर निकल जाते हैं, यानी कि स्टॉप। ओके, इफ एनी कंफ्यूजन सी दिस वीडियो अगेन। अब नाउ आई नो एन एल्गोरिथम इज ए sequence of steps followed to solve a specific task. An algorithm makes it easy to code a program. Next, it is written in simple English language. Next,
A flowchart is a pictorial representation of an algorithm. There are various symbols used to draw a flowchart. Now we finish our lesson. If any confusion in this video, call or message me. अभी आपको होमवर्क बता दे रहा हूँ जो नोटबुक में करना है आपको. Now I know time to answer and let us practice only one time in your computer notebook. और जो ब्लैंक से ट्रू फॉल्स है वो आपको मैं आपके मटेरियल मेनू में अभी दे रहा हूँ. ओके, वो आपको कंप्यूटर टेक्स्ट बुक में फिनिश करने हैं. और फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, इफ़ एनी प्रॉब्लम, कॉल और मैसेज मी. थैंक्स.